کوئی جڑ سوتانے کوئی جان جاگے بائے کوئی جان جاگے ہارے باندھا کوئی کوئی کرے رے کمائی جیرے سب جوگا ستا میرو خالق جاگے خدا واند جاگے سیدہ بولیا فاضل شاہ سوائی جیرے ہم پر دے سے بائے دورا تھیا یا بائے دورا چلا اللہ کی یاد جانو مولا کی یاد جانو کیا ہو سے جھیرے کیڑی پیرے صاحب مارو لے خال سے خالق گونا خدا حاضر امام نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پڑھ. دیندارو، تقریباً در ایک مذہبی کتاب کے اندر، ہر دھارمک پستک کے اندر، اس میں بھی خصوصاً جو ہمارے اسلام کے جو مذہبی خطابیں ہیں قرآن پاک حدیث وغیرہ کا، اس سب مذہبی پستکوں کے اندر ہم جو انسان ہے ان انسانوں کو الگ الگ ٹائٹل سے نوازنے میں آیا ہے، الگ الگ لقب سے ہم کو یاد کرنے میں آیا ہے. جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک ہمارا لقب دینے میں آیا ہے، ٹائٹل دینے میں آیا ہے انسانوں کو، ہم منوشیوں کو، کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ہائیسٹ ان دی ورلڈ. اشرف یعنی ہائیسٹ اور مخلوق یعنی ورلڈ، کہ انسان ہم کو یہ نام سے بھی بلانے میں آتا ہے کہ اشرف المخلوقات، کہ ہمارا جو درجہ ہے وہ اس دنیا کے اندر خداوند تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، چرندے پرندے، یہ اینیملز، ونسپتی، ٹریز، پلانٹس وغیرہ، ان تمام کے اندر انسانوں کو خدا نے کہا کہ وہ اشرف ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اونچا ہے. ایسے ایک اور لقب ہمیں دینے میں آیا ہے ہم انسانوں کو، حیوان عاقل. حیوان کہتے ہیں اینیمل کو، جانور کو، اور عاقل یعنی عقل مند، کہ عقل رکھوا والو جانور. جانور ہم بھی ہیں لیکن تھوڑے ماڈرن ہم جانور ہیں، اینیمل ہیں. وہ جانور سوچ نہیں سکتا ہے، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. تو ہم کو کہنے میں آیا، ہم کو لقب ٹائٹل دینے میں آیا کہ بھئی انسان وہ حیوان عاقل ہے، کہ عقل رکھوا والو ایک حیوان ہے. ایسی ایک تیسرا ٹائٹل ہمیں دینے میں آیا ہے، اور اس ٹائٹل کا، اس لقب کا نام ہے کہ عقل جھوٹ.
अक्ल जुज, जुज कहते हैं लिमिटेड, थोड़ू, और अकल कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, कि इंसान बहुत थोड़ी अकल वाला है, बहुत थोड़े नॉलेज वाला है। हमको अक्ले जुज का भी एक लक़ब है कि इंसान अक्ले जुज है। लगता है कि हम थोड़ी अकल वाले होवे। दीनदारो, आज दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाओ कि ये थोड़ी अकल वाले इंसान ने दुनिया में कितना प्रोग्रेस किया है, और कितना साइंस के अंदर आगे दौड़ता ही जा रहा है। आज अमेरिका, कनाडा और जो एडवांस कंट्रीज है उसमें जाओ तो अकल काम नहीं करती, अरे शुरू है। और इसी के लिए शाह करीम आज़म ने थोड़ा इशारा किया था ने कि कदाच इंसान जो है वो अपने आप को वो क्रिएटर समझने न लग जाए कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तुम क्रिएट करने वाले नहीं हो, तुम तो सर्जन हो, खुदा का सर्जन तो वो है। तो कितना इंसान की जो अकल है वो दौड़ रही है। फिर भी हमको कहने में आया कि लिमिटेड नॉलेज वालों इंसान, तो कहा अकले जुज। तो ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, हमारे अंदर हर किस्म का नॉलेज दिया है। जो मैंने आपको बताया कि हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, हर किस्म का। लेकिन एक नॉलेज, एक ज्ञान हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है, बहुत थोड़ा देने में आया है। इसके लिए हमको कहने में आया कि अक्ले जुज। तो कौन सा ज्ञान हमको थोड़ा देने में आया? सूरे बनी इसराइल चैप्टर का नाम देता हूं, कुरान की सूरत, कुरान का चैप्टर सूरे बनी इसराइल और आयत 85, 85वीं आयत। देखो इसमें जवाब आता है कि हमको कौन सा नॉलेज थोड़ा देने में आया है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने, कह दे इन लोगों को, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने જે લોકો તને આત્માના રૂહના બારામાં ક્વેશ્ચન કરે છે, સવાલ કરે છે। हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो, इनको सवाल पूछने में आया कि या रसूल खुदा आत्मा शू है, रूह क्या है? तो रसूलुल्लाह तो सोचने पड़ गए। भाई कोई मटीरियल चीज के बारे में पूछे तो बतावे ने, कोई किताब के बारे में पूछे कि बाइबल क्या है, तो देखो ये बाइबल है। कोई सिटीज के बारे में पूछे, कोई ट्री के बारे में पूछे, तो मटीरियल चीज के। अब ये तो एक ऐसी चीज के बारे में सवाल पूछने में आया फिर इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। तो कहा आत्मा क्या है या रसूल खुदा? तो थोड़ा सोच में पड़ गए। तो फौरन अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की सूरे बनी इसराइल की 85वीं કે કહી દે એ મોહમ્મદ, જે લોકો તને આત્માના માટે સવાલ કરે છે એને કહી દે કે આત્મા મારા અલ્લાહનો હુકમ છે, રૂહ મેરે ખુદા કા અમ્ર है। અને એ પણ કહી દે કે આત્મા માટે તમો ઇન્સાનોને બહુ લિમિટેડ નોલેજ આપવામાં આવ્યું છે, रूह માટે તમને બહુ થોડું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે। रूह के लिए हमको बहुत थोड़ा नॉलेज देने में आया है। बाकी दुनिया का बहुत नॉलेज हमारे पास है, लेकिन ये आत्मा की जो बात है ना, रूह और सोल की बात है ना दीनदारों, वो हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है। हमको कितना ज्ञान है आत्मा का, कितना ज्ञान है? हम पूछेंगे भाई पा हलोता चलोता की, तो बोलेंगे पानी में रूह है ना इतने पा हलोता चलोता, कि बा खाओता पियोता सूंघोता सुनोता, बराबर ने। मैंने पिछली राइज में थोड़ी दलील दी कि कान को काट के रेडियो के पास रख दो, वो सुनेगा, तुम दूसरे रूम में चले आओ। नहीं, ये नाक को काट के परफ्यूम की बोतल पे रख दो, नहीं तुम चले आओ दूसरे कमरे में, तो वो कचेरा नाक उस में नहीं सूंघेगा, राइट। डेड बॉडी हो उसको तुम मारो, वो कुछ बोलेंगे तुमको? नहीं, पड़ी है। मगर कभी रस्ते में रश के अंदर किसी को साथ धक्का लग जावे तो बाई चढ़ावे, धक्को मारे तो, राइट। तो ये क्या था जिसको लगता है? ये क्या है जो स्मेल करता था? ये क्या है जो सुनता है? ये क्या है जो देखता है? तो हम कहेंगे कि रूह है नहीं, इसलिए। फिर आदमी मर जाता है तो बोले भाई मरी गयो, तो मरी गयो कूड़ो मर बोले ना अंगत में रूह हली गयो, तो रूह हली गयो किड़ा गयो, बोले खबर है रूहानी दुनिया है हली गयो। बस इससे आगे हमको कुछ ज्ञान है आत्मा का? नहीं ना, लिमिटेड नॉलेज है। इसके लिए हर समय के अंदर, हर दौर के अंदर
اللہ نے عقل جھوٹ کے سامنے، تھوڑی عقل والے کے سامنے ہر سمے میں اپنا ایک مظہر رکھا ہے، اپنا ایک سوروپ رکھا ہے، تو جس کو نام دینے میں آیا ہے عقل کل۔ تھوڑی عقل والوں، عقل جھوٹ، اور اس کے سامنے عقل کل۔ کل مینس ٹوٹلی، اور عقل مینس آپ کو کہا کہ نالج، ٹوٹلی نالج جس کے اندر ہوئے وہ عقل کل۔ سرو پرکار نو ज्ञान જેની અંદર હોય وہ عقل کل۔ تو وہ عقل کل جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی رکھا ہے، اپنے اس مظہر کو بھی رکھا ہے، تاکہ وہ ہر سمے کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ نے عقل جھوٹ کے سامنے، تھوڑی عقل والے کے سامنے ہر سمے میں اپنا ایک مظہر رکھا ہے، اپنا ایک سوروپ رکھا ہے، تو جس کو نام دینے میں آیا ہے عقل کل۔ تھوڑی عقل والوں، عقل جھوٹ، اور اس کے سامنے عقل کل۔ کل مینس ٹوٹلی، اور عقل مینس آپ کو کہا کہ نالج، ٹوٹلی نالج جس کے اندر ہوئے وہ عقل کل۔ سرو پرکار نو ज्ञान જેની અંદર હોય وہ عقل کل۔ تو وہ عقل کل جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی رکھا ہے، اپنے اس مظہر کو بھی رکھا ہے، تاکہ وہ عقل کل جو ہے، جو بابت کا ज्ञान کم دینے میں آیا ہے، یا جو بابت انسان نہیں جانتا ہے، وہ عقل کل اس کو بتا سکتا ہے، عقل کل۔ اور ہم دعا کے اندر 3 ٹائم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہر પ્રકારનું જ્ઞાન، હર પ્રકારનો સમાવેશ، ચીજનો સમાવેશ જાહેર ઇમામની અંદર કરવામાં આવ્યો છે۔ مولانا شاہ سرکار سلطان موسیٰ مبارک نام کے اوپر سرت۔ دیکھو، ہم کو روح کے بارے میں بہت کم نالج، اس کے لیے ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں، میرے کو کوئی بہت اونچی بات پوچھے نا روحانی دنیا کی کہ تو میں بول بھائی انڈو نالج مجھے نہ ہے، ہاں جتنا میں جانتا ہوں فرمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، حاضر امام کے ساتھ ایسے کوئی انسیڈنٹس بن گئے ہوئے اس کی روشنی میں تو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر جب تک وہ فرمان، جنان، قرآن، حدیث اور یہ سب کو چھوڑ کے اگر آتما کے بارے میں کوئی اپنی عقل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، فرمان کا ریڈنگ رکھو، کوئی الوائز کو مت پوچھو روحانیت کے بارے میں، آپ ڈھونڈو فرمان کے اندر، آپ ڈھونڈو، آپ کو جنان کے اندر ملے گا، سلطان موسیٰ کے فرمان کے اندر ملیں گا، آپ کو قرآن کے اندر جواب بہت سارے ملیں گے۔ لیکن انسان جو اللہ نے فرمایا کہ بہت لمیٹڈ نالج آپ کو معلوم ہے، تو وہ اپنے اپنے طریقے سے کوئی بولے گا ہاں ری برتھ آئے نہیں، کوئی بولے گا ری برتھ نہ آئے نہیں، ری انکارنیشن آئے نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل سے بولتا ہے، وہ فرمان کی روشنی میں نہیں کہتا ہے، وہ قرآن کی روشنی میں نہیں کہتا ہے۔ تو مولانا سرکار سلطان موسیٰ مبارک نام کے اوپر صلوات ہو۔ میں نے ایک فرمان نوٹ کیا یہاں پر ابھی، مولانا سرکار سلطان موسیٰ ایک مہمانی کے اندر روحانی کی مہمانی ہے، اور روحانی کی مہمانی کے اندر مولانا سلطان موسیٰ فرماتے ہیں، ممبئی تاریخ 26 دسمبر 1883۔ دیکھو مولانا سلطان موسیٰ، اے بائی મારી હજુરમાં છે, وہ બાઈ کی રૂહાની की મહેમાની રખેલી, એ બાઈ મારી હજુરમાં છે, અને તમે ખાતરીથી માનજો કે આ બાઈ પોતે મને મહેમાની કરી રહી છે। रूहानी की मेहमानी रखी हो बाई की, कुटुंब वाले ने, फैमिली वाले ने। तो मौला कहता है ए बाई मारी हुजूરમાં છે અને એ બાઈ પોતે મને મહેમાની કરી રહી છે, અને એ પોતે અહીં હાજર પણ છે। गणा गणा दुआ से खाना वदान सलवात पढ़ो मौला के नाम के ऊपर। तो ये किसने बताया? ये कौन देख सकता था कि भाई वो बाई जिसकी रूहानी की मेहमानी रखने में आई है, मौला कहता है वो खुद मेहमानी कर रही है, वो इस मेहमानी के अंदर हाजिर है, वो ये मेहमानी देख रही है। क्यों? पैगंबर और इमामों को ये शक्ति और ताकत है,
وہ یہاں رہ کے بھی اس روحانی دنیا کو اور روحوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں انسان کو بھی وہ اپنے آپ کو اسپرچولی ڈیولپمنٹ کرے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن پھر اس کو حکم کرنے میں آیا ہے کہ تیری زبان بند کر دے. وہ کہا نا کہ گونگے سپنا پایا یعنی سمجھ پچھتائے رے. تو ہر عقل جز کے سامنے عقل کل ہے جو ہم کو یہ روحانیت کی باتیں بتاتا ہے, جو ہم کو روحانی دنیا کی باتیں بتاتا ہے. میں نے ڈاکٹر والجی کی کیسٹ سنی, اس میں ایک بنا انہوں نے سنایا کہ ہمارے انڈیا کے مرحوم پریزیڈنٹ وزیر مکلائی وہ مہمانی کے اندر سلطان محمد شاہ آنے کو دیر تھی تو بائی کہتی ہے کہ وزیر صاحب امام આવે ને તો મને તો આમ ગભરાટ થશે બોલવા. તમે ઇમામને પૂછજો ને મારો ધણી છે ને ખોવાઈ ગયો છે, બહુ વર્ષો થયા મળતો નથી. મકરાએ પૂછते इमाम सुल्तान से खुदाबिन ये भाई की अर्ज है, इसका खाबिन बहुत बरसों से नहीं मिलता है. माँ बोला सब तलाश किया? बोले हाँ खुदाबिन. भाई बोलती है सब तलाश किया, पेपर वगैरह में दिया. सुल्तान शाह ने आंख बंद किया, आंख बंद करके फिर ऐसा देखते इधर देखते उधर देखते और फिर माँ आप कहते मकलाई ये भाई को बोलो कि इसका जो खाबिन है ना ये दुनिया में हयात नहीं है, वो रूहानी दुनिया में चले गया है, वो वहां चले गया है. कौन बता, नहीं बता सकते अपने नहीं. मौला कहता है वो रूहानी दुनिया के अंदर चले गया है. ऐ मोहम्मद કહી દે કે આત્મા છે એ અલ્લાહનો અમર છે અને તમો ઇન્સાનોને બહુ ઓછું નોલેજ આપવામાં આવ્યું છે. મૌલાના શાહ કરીમ હુસૈની હાજર ઇમામ મુબારક નામ के ऊपर सलावत करो. 1966 के अंदर 1966 के अंदर हाजिर इमाम ईस्ट अफ्रीका की टूर के ऊपर थे धार्मिक कामकाज के लिए. 66 में मौलाना हाजिर इमाम ने कुछ लिमिटेड अलवाइजों को ऑडियंस दिया. पहले साथ में ऑडियंस दिया, फिर इंडिविजुअली भी थोड़ा टाइम दिया, सबको 10-10 मिनट दी. उसमें के एक अलवाइज उसने मुझे कहा कि मिशनरी 1966 और किसुमो के अंदर मौलाना हाजिर इमाम ने अलवाइजों को ऑडियंस दिया. और अलवाइज कहते हैं कि मिशनरी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसा परेशान करते थे, जमात में से भी मेरे को बहुत पूछने में आता था. तो मैंने मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम को जब इंडिविजुअल मुलाकात दी ने तो मैंने मौलाना हाजिर इमाम को पूछा कि खुदाबिन एक सवाल बहुत पूछने में आता है जमात में से. मौला ने कहा कौन सा सवाल? तो अलवाइज कहते हैं खुदाबिन पूछते हैं कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाता है, मरण के बाद आत्मा कहाँ जाता है. और हाजिर इमाम ये भी पूछते हैं कि ये हम सब उसके पीछे सब कराते हैं, ये सब चीजें रखना, सभी रूहानी की दुआएं कराना, रूहानी की तस्बीह निकालना, तो ये बराबर है, ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है. उसने कहा खुदाविन हम थोड़ा हमारी अकल से और जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी खुदाविन आप भी कुछ गाइडेंस दो. तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने कहा कि सवाल तो तूने ऐसा पूछा है कि बहुत टाइम निकले जवाब देने में, लेकिन मैं तेरे को शॉर्ट में खुलासा करता हूँ. और मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि देख अलवाइज मौत के बाद सुनना ये सब चीजें, मौत के बाद रूह अपनी करने के मुताबिक 3 स्टेज के अंदर 3 दर्जे में चले जाता है. रूह अपनी करने के मुताबिक 3 दर्जे के अंदर चले जाता है. मैंने गिनान का पाठ दिया. जी कोई जन सूता, कोई जन जागे અને कोई करे कमाई. जिनान में पहले सूते लोग को लिया, फिर जागेले ने फिर टॉप लेवल को तीसरी लाइन में लिया है कि कोई करे कमाई. अभी सुना हाजिर इमाम मिशनरी एक आत्मा एक रूह ये होता है जो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में रह के अच्छे काम करता है, नेकी करता है, कैरेक्टर का अच्छा होता है, अमल का अच्छा होता है, बाकायदगी से इबादत करता है, धर्म के अंदर बराबर रहता है, दान सखावत करता है. हाजिर इमाम खुद एक्सप्लेन करते हैं मिशनरी ऐसा जब शख्स मर जाता है तो लिसन अलवाइज मौला कहता है उसका रूह किधर नहीं जाता है. माफ कहता है जैसा उसका रूह इस बॉडी में से निकला
इस शरीर में से निकला तो हाजिर इमाम ने इंग्लिश में कहा कि वो यूनिवर्सल सॉल के अंदर चले जाता है। और फिर मौला फरमाते हैं इन अवर जमाती लैंग्वेज वी आर सेइंग असल में वासल हो जाना। हाजिर इमाम कहते हैं अपनी जमात की भाषा में हम इसको कहते हैं कि असल के अंदर वासल हो जाना। मिशनरी ऐसे लोगों के लिए न रूहानी मजलिस की जरूरत है, न कोई चीज रखने की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो ऑलवेज मेरे को कहता है कहा तो मुझे भी, यानी मुझे चेहरे के मत एकदम एक्सप्रेशन आ गया कि हाजिर इमाम हंसे। हाजिर इमाम फरमाते तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? तो ये खुदा भी बोला कहता है मुझे पता है तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ। बोला कहता है कि वी डोंट नो। हाजिर इमाम कहते हैं जी यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता, जमात को एड्रेस करते कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गया है वो असल में वासिल हुआ है कि नहीं। हाजिर इमाम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज अगर ऐसी रूह असल में वासिल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। हाजिर इमाम वो वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले वी डोंट नो। हाजिर इमाम कहते हैं जी यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता, जमात को एड्रेस करते कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गया है वो असल में वासिल हुआ है कि नहीं। हाजिर इमाम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज अगर ऐसी रूह असल में वासिल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। हाजिर इमाम वो वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले को जाता है। 100% सवाब उसको, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम दलील दिया था ना कि भाई मुझे छोकरो मुके हलाए अमेरिका से पैसा हलाए तो ड्राफ्ट हलाए तो हाँ वो पैसे वाला है मुके जरूर नहीं तो ड्राफ्ट रिटर्न करा तो बता पाछा कि भाई थोड़ी बैंक बैलेंस पे वधारो कर तो ड्राफ्ट सब रिटर्न होते हैं वापस मेरी कैपिटल के अंदर। तो मौला ने कहा बेकार नहीं जाता है। और फिर शाह करते ये कौन से आए कोई करे कमाई। मौला फरमाता है लेकिन अलवाइज दूसरे प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिसमें इस दुनिया के अंदर बंदगी करा नहीं करा, बंदगी करा नहीं करा। मौला कहता है दुआ पढ़ा नहीं पढ़ा, जमात खाने आया नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे आमाल होते हैं। शाह करीम के कुछ अच्छे काम होते हैं। तो मिशनरी वो असल में वास्तव नहीं होता है, बंदगी अधूरी है ना, बंदगी अधूरी है, वो असल में वास्तव नहीं होता है मिशनरी। लेकिन हाजिर इमाम फरमाते हैं दे आर इन वेटिंग लिस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर। मौलाना सरकार सुल्तान मूसा के कुछ फरमान मैंने अभी दोपहर को बैठे बैठे निकाले फरमान की किताब में से। फरमान की किताब ये पढ़ी रूहानी राज, ये अभी लास्ट पब्लिकेशन है 84 का, इंडिया एसोसिएशन का। अगर होवे आपके पास नहीं होवे तो मंगा लेना, इंडिया के अंदर है ये। और इसको बार बार पढ़ना इस बुक को। इतने खुलासे दिए हैं सुल्तान मूसा ने। मौला ने फरमाया પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તો સારું, એવું ન બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાए तथा पीवे तथा सूवे। इसको मैं लेता हूं, ये फरमान को अभी सुनो। જે શખ્સની જિંદગી પૂરી થવા સુધી તેના દરેક ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય અને જેનો રૂહ રાત દિવસ ખુદા તાલા સાથે મેળાપ કરતો હોય તેવા લોકો પોતાના હિંમતથી ઘણે ઊંચે દરજ્જે પહોંચી શકે છે। ફર્સ્ટ ક્યાં આયા? જે પાક હોય, જેના ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય, જેનું રૂહ રાત દિવસ ખુદાવંદ તાલા સાથે મેળાપ કરતો હોય એ પોતાની હિંમતથી ઊંચે દરજ્જે પહોંચી શકે છે। फिर एक फरमान मैंने निकाला, मौला फरमाता है कि તમે સગડા ઈમાનદાર મોમન છો, તેથી અમને સાચા મુર્શિદ કરીને સમજજો। તેથી તમે આ દુનિયામાં ગુનાથી પાક હશો। હકીકતી મોમન ગુનાથી પાક હોય છે અને આત્મતના પણ સુખી આબાદ હોય છે અને પોતાની કરેલી કરણીના ફળ એ આખરતમાં પણ લે છે।
પોતાની કરેલી કરણીના ફળ એ આખરતમાં પણ લે છે. मौला कहता है उसकी करनी के मुताबिक उसको वहां भी जगह मिलती है. और फिर शाह करीम फरमाते हैं अलवाइज तुझे पता है वहां फिर क्या होता है? नहीं खुदावी सुन, जो लोग असल में वासल नहीं हुए हैं, जो लोग रूहानी दुनिया के अंदर हैं, कुरान में उसको वर्ड क्या देने में आया? बरज़ख. बरज़ख यानी एक ऐसी जगह जहां रूहों को रखने में आता है. मौला ने फरमाया तो ऐसी रूहों के लिए अलवाइज आप लोग मजलिस कराते हो, आदिम इमाम कहते हैं जमात खाने में मजलिस कराते हो, उसके पीछे सब चीजें रखते हो, उसके पीछे तस्बियां निकालते हो, तो मौला ने फरमाया वो चीज उसको इतनी हेल्प करती है, इतनी हेल्प करती है, मौला फरमाया कि वो उसको पुशअप करती है, उसको आगे बढ़ाती है. और फिर शाह करीम कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब उसका दूसरा पलड़ा बराबर हो जाता है तब वो असल के अंदर वासल होता है और वहां वो अपनी बंदी पूरी करता है. कितनी जरूरत है बंदी की? सिंगर कितनी जरूरत है? मौलाना शाह करीम हुसैन आदरी मां मुबारक नाम के ऊपर सवाल पर आई प्रे दैट दोज हु प्रैक्टिस बंदी गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस and prepare yourself for life hereafter. If you practice Isme Azam, you will be prepared for life hereafter. Those who forget this basic fact, they are committing a very great mistake. फिर मौला फरमाते हैं I emphasize that you must spend some time to prepare for life hereafter. खाना बदलान सलवात थोड़ा मोला की. अभी ये फरमान के आगे रहता है कुछ खुलासा बाकी कि बंदगी जरूर आए कि ना. ये फरमान शाह करीम का है फरमान कि तुमको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में से. किसके लिए? तुम्हारी उस रूहानी दुनिया जो तुमको सुधारनी है ना, मौला कहता है. और हाज़िर इमाम फरमाता है जो लोग ये भूल जाते हैं वो बहुत बड़े में बड़ी गलती करते हैं, बड़े में बड़ी मिस्टेक करते हैं. मौला ने फरमाया तुम बड़ी मिस्टेक कर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर. तो दूसरी एक दुनिया है, रूहानी दुनिया है. मौला ने फरमाया कि वहां उसको मिलता है, लेकिन टॉप लेवल का हम लोग उम्मीद न रखे भाई. खुला रूहानी दुनिया में अटकी विंदे वो वैसे इंग्लिश के अंदर पर हिडा चांस है, अभी चांस है. तो मौला ने फरमाया कि सीधा ये बॉडी में से निकला और मौला ने कहा कि ये चले गया, अल्लाह के नूर में वासल हो गया यूनिवर्सल सॉल के अंदर. लास्ट अक्टूबर में न्यूयॉर्क में एक भाई गुजर गए. मैं तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल देता हूँ ना, जमा भी करता हूँ. उसका लड़का पूना में था जब भाई मर गए. फातिमा भाई उसका नाम, फातिमा वीरानी. उसके लड़के ने मेरे को बात क्यों किया पता है कि मिश्री से बहुत सरप्राइज थे तो के हिंदी भी मरी भी ने मालूम. मेरे बोलता है बेचारा रोता भी था. बोले रूंझो એટલે तो बुढ़ी माँ जी आओ मजाक करिए थोड़ी. माँ फोन करती है वहां से बिफोर 10 days लड़के को पूना के अंदर. पूना में इसकी लड़की है, वो भाई बहन के पास आया था मिलने को. माँ फोन करती है बेटा आने अच्छी बिन ने जल्दी. तो कुआ है माँ जरा रोन देना, बहुत बरस पछी आ गया. बेटा तू अच्छी बिन तुझे बच्चे लोग के संभाल तू आने आओ વધારે ટાઈમ નહીં હું જાઉં બહુ જલ્દી હલી બી વારી है. तो बोले आओ हंस्यो फोन के अंदर कि मम्मी हजी तुम्हें छोकरिया व्याह करना ने करो तो विनिंग की बात करती बड़ी मजाक ना कर. बेचारी बोलती ना ना सच्चे साथी तू जितना बने तो जल्दी है. और मेरे को बोलता है कि 8 दिन के बाद आफ्टर 8 days 2 कलाक के पहले फोन आया. वहाँ का शाम का टाइम था, अमेरिका का 7 बजे का. उस दिन जमात खाने नहीं गए, सब लड़कियों को फोन करी इंडिया के अंदर. एक लड़की गोंडल के अंदर, एक पूना के अंदर है. लड़के को फोन करी, सब लड़की के पास माफी मांगती है कि मेरे को माफ करना, अपन मिल नहीं सके, कुछ भूल चूक हो गई होवे वगैरह. लड़के के पास माफी मांगती है, ये पूना के अंदर लड़का है उसके पास माफी मांगती है कि बेटा भूल चूक माफ करीश तो के हैरान करीवा कि की भी बधो मूके तू छो फोन जे माता कि मम्मी माफ करा तो बधो. अरे वो बोले हाँ मजाक ज करा तो मम्मी जी. और फिर वहां क्या होता है, वहां बड़े लड़के को कहती है मुझे थोड़ी दसोन भरण दिया, मुझे पैसा दे. फौरन फिगर दिया बहुत बड़ा मेरे को $, दिए. और फिर बहू को कहती है कॉफी बनाई दे तो बहू कॉफी बना के लाई. कॉफी बना के लाई ने
تو بولتی ہے نہ ہنے نہیں پینے. ارے ممی کلائے نہ ہنے دسون چھڑی بھی نہیں سائے مچھی گیا. اور بولے نیاز دو نیاز بھی سوئی لگے بھی نہیں. اپنے ہاتھ سے بس وہ پاؤں لمبے کر چادر یہاں تک چڑھائی, بس تسبیح پھرتی تھی, اوہ نکل گئی. 2 گھنٹے کے بعد وہ پونا میں لڑکے کو بڑا بھائی فون کرتا ہے کہ ممی ہلی نہیں کریا گزر گیا. وہ شوق ہو گیا ایک دم, کھلو بات کرتا. بولے یہ ممی پتلے کلاس کے لیے گزر گیا. وہ بولتا ہے مستری ایسی بھی بات ہو سکتی ہے, ایسی بھی ہو سکتی ہے. زندہ مومن મસ્તાના સિંહ જેવો હોય છે. આ શરીરમાંથી છૂટ્યો ને આ ચેતખાનામાંથી મોલા કહેતા હે તો સીધો એ ખુદાના નૂરની અંદર વાસી છે. કોઈ જણ સૂતા કોઈ જણ જાગે અને કોઈ કરે કમાઈ वो हाई लेवल की, कोई करे कमाई. बाकी जागेले लोग हैं हाँ करनी खपे. हाँ बंदी तो बाकी ये बड़ी दाखला तो नहीं कहूँ बंदी करनी खपे. फिर वरी थोड़ा दिन आवे वरी सुस्ती चढ़ी आवे कंटाळो છે સુબા વાંચવાના ખાલી વરી કોઈ એડવાઇસ આવે બંદી કરनी खपे. એ જાગેલે પણ એક્શન में नहीं अमल में नहीं. करनी खपे जागृति है पर एक्शन नहीं अमल नहीं. અને કોઈ જણ સૂતા बोला कहते शाह करीम कहते मिशनरी. तेरे को पता है 3rd टाइप ऑफ सोल हाजिर तीसरा प्रकार का आत्मा मिशनरी पता है कैसा है वो. हाजिर कहते हैं अलवाइज दे आर लोअर सोल्स. अंग्रेजी में लोअर सोल्स नीच प्रकारના આત્માઓ. नीच प्रकारના આત્મા. मौला ने फरमाया खाते हैं पीते हैं दुनिया में अय्याशी करते हैं ऐश आराम करते हैं अल्लाह को याद नहीं करते हैं गुनाहों में जिंदगी बसर करते हैं. अमल नहीं. અને કોઈ જણ સૂતા बोला कहते शाह करीम कहते मिशनरी. तेरे को पता है 3rd टाइप ऑफ सोल हाजिर तीसरा प्रकार का आत्मा मिशनरी पता है कैसा है वो. हाजिर कहते हैं अलवाइज दे आर लोअर सोल्स. अंग्रेजी में लोअर सोल्स नीच प्रकारના આત્માઓ. नीच प्रकारના આત્મા. मौला ने फरमाया खाते हैं पीते हैं दुनिया में अय्याशी करते हैं ऐश आराम करते हैं अल्लाह को याद नहीं करते हैं गुनाहों में जिंदगी बसर करते हैं. अलवाइज ना तो वो असल में वासल होता है न स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जगह मिलती है बट दे आर टेकिंग रीबर्थ इन वन और अदर फॉर्म. यहाँ मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान दिया. मौला ने फरमाया કે પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તો સારું, એવું ન બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાય પીવે થતા સુએ. ઢોર माफक हैवान की जिंदगी. आया कभी बरस में 1 टाइम जमात खाने का रौन मार लिया मगर उसमें भी नीति कैसी. जरा बड़े बड़े लोग सब बिजनेस की गाल बोलती है जरा गाली बोलती है. मिलना है ना वो बिजी है बता दिलदारो. ऐसी साइड से बाकी गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर करते हुए गुनाहों के अंदर. मौला ने कहा कभी खुदा को याद नहीं करते हैं कभी अल्लाह को याद नहीं. इसलिए मौला ने शाह करीम ने कहा मैंने कहा कि स्पेंड करो थोड़ा टाइम तो तुमको देना पड़ेगा इबादत के लिए. वो रूहानी दुनिया की तैयारी के लिए. वो रूहानी दुनिया की तैयारी. मौला ने कहा दे आर टेकिंग रीबर्थ इन वन और अदर फॉर्म. तो मैंने आपको कहा अर्ज किया कि सिर्फ अपने कुल हमको बता सकता है कि रूहानी दुनिया के अंदर आत्मा कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, उसको रूहानी दुआ का कैसा असर होता है. बाकी इंसान तो अल्लाह ने फरमाया कि એને તો બહુ લિમિટેડ નોલેજ આપવામાં આવ્યું છે, એને તો બહુ થોડું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. मैं कनाडा की टूर के ऊपर था ना, एक भाई ने बहुत अच्छी दुआ पढ़ी, यानी तलफ़ुज़ उच्चार बहुत अच्छे थे. मैंने कहा मुखिया भी दुआ केर पढ़े तो कहा कि सारो थी आई थोड़ा पूछा कि मारू साथे मिलो. तो बार आफ्टर सब जमात का काम का रिफ्रेशमेंट था तो मेरी मुलाकात कराई. नाम बोलता हूँ हिशाम हिशाम मिश्री साहब से मिलो जाली मौलाली. तुम्हारा सब बात बताओ अलवाइज को. मेरे सब मेरे कहता है भाई कहता है मिश्री साहब मैं ओरिजिनल इस्माइली नहीं हूँ. बोले नहीं तो कभी बने इस्माइली. बोले 9 साल हुआ, 9 बरस हुआ है. इसमें से बनाए इस्माइली. तो कहा कि सुन्नी फिरके में से
सुन्नी सेक्ट में से। कौन सा सेक्ट? सुन्नी में 4 बड़े हैं ना, हनफी, हम्बली, मालिकी, शाफी। बोले मिस्त्री साहब मैं शाफी सेक्ट में चाहता हूँ, शाफी फिरके में से। मैंने क्वेश्चन किया, इसकी बातें मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने क्वेश्चन किया क्या आपको इसमें लगा, क्यों आप दाखिल हुए इस्माइली धर्म के अंदर, ये फिरके में क्यों आए आप? तो कहता है लिसन, मेरे घर की एक भी एडिशन नहीं करता हूँ। कहता है मिस्त्री साहब ये रंग है ना, ये रंग इस्माइली धर्म का सबको नहीं लगता है, सबको नहीं लगता है, जो नसीब वाला होवे नहीं उसको लगे। और फिर कहता है अलवाए मेरे बाप दादों ने जरूर कोई अच्छी नेकी की होगी, इसके लिए मेरे को ये फिरका मिला, ये धर्म मिला। और कहता है अलवाए हम क्या थे, हम तो रस्ते की धूड़ जैसी भी नहीं थी हमारी कीमत, लेकिन मौला ने हमको कबूल का जावे, आंख में से आंसू निकलते गए कि मौला ने हमको कबूल कर लिया। मुझे कहता है काउंसिल ने हमको धक्का बहुत खिलाया इस्माइली बनाने को, मौला का हुक्म है, काउंसिल ने हमको धक्का बहुत खिलाया, बहुत सवाल किए। बोले एक टाइम मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सवाल किया कि तुमको पता है आप जिसको ज़कात बोलते हो हम लोग उसको दसोन कहते हैं, हम लोग दसोन जो है वो हमारे हज़रत इमाम को देते हैं। तो बोले मिस्त्री साहब मैंने प्रेसिडेंट साहब को जवाब दिया कि ये तो इस्माइली बनूंगा बाद में ना। बोले हाँ मगर ये भी तेरे को नॉलेज रखना चाहिए। तो बोले प्रेसिडेंट साहब मैं तो बहुत टाइम से दसोन निकालता हूँ, बहुत टाइम से। तो बोले वो जरा घबरा गए, बोले क्या बात करता है? बोले नहीं जमात खाने में नहीं डालता हूँ, मैं जमा करता हूँ मेरे घर में, क्योंकि अगर मैं दसों नहीं निकालूंगा तो मेरी बेगम ने हम लोग खाना कैसे खाएंगे, उसकी वाइफ इस्माइली। तो बोले कि दसों तो पहले से मेरी इनकम अलग है, मेरी वाइफ की अलग है, लेकिन हमारी दोनों की उसकी दसों वो जमात खाने में डाल देती है, मेरी दसों घर में जमा होती है, और जब भी आप मेरे को बनाएंगे मैं सब दसों डाल दूंगा जमात खाने के अंदर जाकर। और फिर कहता है अलवाइज मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम की प्रोग्राम में हुई कनाडा के अंदर, हाँ उसको बना लिए, लंदन में वो इस्माइली बना। बोले मेरे को पास किए, मेरी अर्जी कबूल किए, मेरे को लंदन जमात खाने के अंदर छांटा मिला, मेरी बैयत हुई। मैंने हाजिर इमाम को देखा नहीं था, हाँ मूवी में देखा था, फोटोज देखे थे पेपर वगैरह के अंदर, लेकिन ऐसा फिजिकली मैंने हाजिर इमाम को नहीं देखा था। 78 में बोले हाजिर इमाम आए यहाँ पर कनाडा धार्मिक कामकाज के लिए। मुझे कहता है अलवाइज फर्स्ट दीदार, जाहिर दीदार के बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया। कहता है मिस्त्री पहला दीदार हाजिर इमाम का, और मैं इस्माइली बनने के बाद मैं पहली मर्तबा हाजिर इमाम को देखने वाला हूँ। मुझे कहता है मुसलमान तो मैं था ही पहले से, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना अरे ये बहुत बड़ा दर्जा है। बोले मुसलमान तो मैं था ही, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना बहुत बड़ा दर्जा है। कहता है कल दीदार है, शाम को धार्मिक कामकाज है, अगली रात को मेरी बेगम के साथ बात करता हूँ कि हाजिर इमाम को क्या प्रेजेंट दूं। फर्स्ट दीदार उसका चेहरा देखूंगा, कुछ मेरे को हाजिर इमाम को गिफ्ट देनी है, कुछ मेहमानी देनी है, मैं क्या दूं? तो बोले मेरी वाइफ बोलती है सोने की एक चेन है अपने पास, नदी है एकदम, वो दे रहे। तो मैंने कहा ना वो नहीं देनी। तो बोले रिंग दे रहे। बोले नहीं ये सब नहीं। तो बोले पेन का सेट दे रहे। तो मैंने कहा वो भी नहीं देना, ऐसा मटेरियल चीज मत याद कर, ये तो देने वाले बहुत हो गए हाजिर इमाम को। तो बोले बस मेरी वाइफ कभी ये याद करती है कि सूट का पीस देवे नहीं, ये देवे नहीं। मैंने कहा पापा ये। तो बोले थक गए बेचारे कि तुमको जो चाहिए वो दो। मैं तो थक गए, बोले मैं जाती हूँ। और बोले मेरे को रोज सुबह उठाने की प्रैक्टिस करा दी थी उसने, उसको चांस भी मिला, एक बार सुबह 3 साल का मुझे भी बना था वहाँ, वो तो उठाने की प्रैक्टिस थी। अचानक मैं बस मौला के पास दुआ मांगता हूँ, खुदा क्या दूं तेरे को, मेरे को कुछ याद दिलाने। और अचानक मेरे को याद आया कि मैं क्या दूं हाजिर इमाम। और मेरी वाइफ को बुलाया, बेगम जल्दी आ। तो बोलो क्या है? बोले याद आ गया। बोले क्या? तो बोले सुन, इसी मोमेंट पे मैं हाजिर इमाम को मेहमानी देता हूँ। कौन सी मेहमानी? तो कहता है मैं हाजिर इमाम को मेहमानी देता हूँ कि या हाजिर इमाम, इस्माइली बनने के बाद मैं कल तेरा पहला जाहिरी दीदार करूंगा, और मेरी मेहमानी कबूल कर कि आज 17 बरस से मैं सिगरेट पीता हूँ, ये सिगरेट की आदत में छोड़ देता हूँ। ये मेहमानी हाजिर इमाम को। उसकी वाइफ तो बोल बोल के थक गई थी बहुत टाइम, इतनी खुशी हुई। बोले मेरी वाइफ की आंख में भी खुशी के आंसू आ गए। सुबह को जमात खाने गए, नियाज किए, मुफ्ती साहब के पास जाके ये कन्फेस किए, और फर्स्ट टाइम सुबह को दीदार था। मैंने कहा कैसा लगा तू पहला मर्तबा देखा? तो बोल नहीं सका, उसका ये भर के आया गला, बोल नहीं सका। बोले शांत से हलवाई
बोल नहीं सकता हूँ कि क्या मेरे को फील हुआ, मैंने क्या देखा उसके अंदर, मैं तेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर बोले शाम को धार्मिक कामकाज है, हाजरी इमाम नादन का छांटा डालने वाले थे, तो मेरी वाइफ मेरे लिए कार्ड लेके आई थी, खुद तो छांटा डला ली थी, मेरे लिए कार्ड लेके आई। मैंने पूछा भाई ये काहे का, तो मेरे को एक्सप्लेन की कि नादन का छांटा क्या काम आवे वगैरह। तो मिशनरी शाम को मैं छांटा डलाने गया, तखत पे बैठा है, लाइन लगी हुई है उसके सामने, हाजरी इमाम पानी में हाथ डालते हैं, फरमान 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 छांटा डालते हैं और कुछ बोलते हैं कान के अंदर, सब लोग निकलते जाते हैं। मेरी बारी आई, मैं दो हाथ जोड़ के हाजरी इमाम के सामने खड़ा रहा, मैं आंख बंद किया कि अभी छांटा पड़ेगा, लेकिन छांटा नहीं पड़ा। हाजरी इमाम का आवाज आया हिंदी के अंदर, शाम आंख खोलो। मैंने आंख खोली, हाजरी इमाम कहते कम नहीं, नजदीक आओ। मैं नजदीक गया, अपना हाथ ठुंडे पे रखा, मुंह कान के पास लेके आए और मुझे कहते हैं कि शाम आज सुबह तूने मेरे को एक मेहमानी अर्पण की है ना, मैं तेरी वो मेहमानी कबूल करता हूँ। हाजरी इमाम ने शाम मैं तुम्हारी मेहमानी कबूल करता हूँ। बोले मैं तो ऐसा शौक हो गया, तो एकदम शेक होता था। बोला कहता है पेशेंट रख, सबूर रख, तू समझा मैं क्या बोला, बस तेरी मेहमानी मैं कबूल करता हूँ। फिर छांटा दिया, फरमान फरमान फरमान, बहुत दुआ से सब गुनाह माफ बोला, बट डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट, रिपीट नहीं करना। है ताकत वो 120 खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, है ताकत ये मेहमानी देने की? हाँ है। छोड़ो 120 340 को, मैं आपको नंबर बताता हूँ, वो नशा लो, बहुत हाई है। हाँ बताओ कौन सा? 786 और 110, 786 और 110, 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 110 या अली, वो नशा लगा लो। हाँ? और फिर देखो है ताकत। अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों, वाय पता नहीं। फरमान निकाला दूसरे को, इसी किताब के अंदर है। हाँ मौलाना सरकार सुल्तान मूसा का मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। मोमन मानस એવું काम नहीं करे। मैं आंख बंद किया कि अभी छांटा पड़ेगा, लेकिन छांटा नहीं पड़ा। हाजरी इमाम का आवाज आया हिंदी के अंदर, शाम आंख खोलो। मैंने आंख खोली, हाजरी इमाम कहते कम नहीं है, नजदीक आओ। मैं नजदीक गया, अपना हाथ ठुंडे पे रखा, मुंह कान के पास लेके आए और मुझे कहते हैं कि शाम आज सुबह तूने मेरे को एक मेहमानी अर्पण की है ना, मैं तेरी वो मेहमानी कबूल करता हूँ। हाजरी इमाम ने शाम मैं तुम्हारी मेहमानी कबूल करता हूँ। बोले मैं तो ऐसा शौक हो गया, तो एकदम शेक होता था। बोला कहता है पेशेंट रख, सबूर रख, तू समझा मैं क्या बोला, बस तेरी मेहमानी मैं कबूल करता हूँ। फिर छांटा दिया, फरमान फरमान फरमान, बहुत दुआ से सब गुनाह माफ बोला, बट डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट, रिपीट नहीं करना। है ताकत वो 120 खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, है ताकत ये मेहमानी देने की? हाँ है। छोड़ो 120 340 को, मैं आपको नंबर बताता हूँ, वो नशा लो, बहुत हाई है। हाँ बताओ कौन सा? 786 और 110, 786 और 110, 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 110 या अली, वो नशा लगा लो। हाँ? और फिर देखो है ताकत। अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों, वाय पता नहीं। फरमान निकाला दूसरे को, इसी किताब के अंदर है। हाँ मौलाना सरकार सुल्तान मूसा का मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। मोमन मानस એવું કામ નહીં કરે, મોમન માણસ એવું કામ નહીં કરે કે તે દારૂ પીએ, તે તંબાકુ પીએ, તે તો નહીં જ પીએ, તે તો નહીં જ પીએ, તે ઝેર હોવાથી તેનાથી દૂર જ રહેશે, તેનાથી દુનિયા અને આખરત બંનેની અંદર નુકસાન થાય છે। ખાલી दुनिया में नहीं, मत समझना कि खाली फिजिकल नुकसान होता है, मौला कहता है कि याद રાખજો આખરતની અંદર પણ તમને નુકસાન થાય છે, આખરતની અંદર પણ। अरे कैसी सिली दलील करते, पता है हाजरी इमाम कीड़ा छुया है कि पीनू ना, हाजरी इमाम तो छुया है कि आंजे हेल्थ के नुकसान करे ने, ई करे ने, अने वधारे पीजे तो नुकसान आए वगैरह वगैरह। ओहो, मैं तो कहूं कि खुदाया, अरे मने जोईने ए हसू आवे छे कि तारा बनावेला जे तने बनावे छे।
કે મને જોઈને હસવું આવે છે કે તારા બનાવેલા આજે તને બનાવે છે. मौलाना शाह करीम हुसैन की हाजिरी में मुबारक नाते सलवात पढ़ो. 2 फरमान लाया हूं, 2 फरमान. एक तो न्यूज पेपर के अंदर आया है, इसी कॉपी से तो निकाल लेना, काउंसिल ने ऑफिशियली निकाला है, पाकिस्तान की काउंसिल ने, कराची की काउंसिल ने. क्या लिखा है पेपर में, न्यूज पेपर में, डोन गुजराती लिखेला है કે હુંજા અને ચિત્રાલ અને ગિલગિટના ઇસ્માઇલીઓએ નામદાર આગા ખાનના ફરમાનથી છોડી દીધેલા સિગરેટ અને શરાબના વ્યસનો. નામદાર આગા ખાનના ફરમાન પર ચુસ્ત અમલ. નામદાર પ્રિન્સ કરીમ આગા ખાનની હિદાયત ઉપરથી ચિત્રાલ, હુંજા અને ગિલગિટના એમના મુરીદોએ સિગરેટ પીવાનું બંધ કરી દીધું છે, શરાબ પીવાનું છોડી દીધું છે અને આ કારણે એમની સામાજિક હાલતમાં સુધારો થયો છે. ઘણા ઇસ્માઇલી વેપારીઓએ સિગરેટ ખરીદવાનું કે વેચાણ કરવાનું પણ પોતાની મેળે મૂકી દીધું છે. ઘણા ઇસ્માઇલી વેપારીઓએ સિગરેટ ખરીદવાનું કે વેપાર કરવાનું પણ પોતાની મેળે જ મૂકી દીધું છે. એ પ્રમાણે સતગુરુ કહે રે હારે ધર્મ તે સાચો ઈમાનનો અને તે ઈમાની સાચો જાણ. અરે જો ઈમાન લાવશો ફરમાન સો तो दास ईमानदार की निशानी. तो मेरे फरमान पे जो तुमने अमल किया ना वो तुम्हारी ईमानदारी की निशानी. कोशिश करो, कोशिश करो. मौलाना सुल्तान मूसा ने फरमाया कि शैतान તમને બહુ હેરાન કરે ને, બહુ જ તમને તકલીફ આપે ને, તો મૌલાના સુલ્તાન મૂસા ने फरमाया कि તમે યાલીનું નામ યાદ કરો. વલ્લાહ તમે બચશો, વલ્લાહ પ્રેક્ટિસ કરો તમે, વલ્લાહ. મૌલા કહેતા है તમે બચશો. તમને બહુ શરાબ પીવા માટે તમે એ કરે ને, સિગરેટ પીવા માટે તમે यालीનું નામનું जिक्र करो. छेले में मौलाना करीम आज़म इमाम का फरमान दे. मैंने सब यहाँ फरमान चेक किए, शायद ये फरमान नहीं है आपकी फाइल के अंदर. हाज़िर इमाम फरमाते हैं अमोए दरेक प्रकारनी आदतों उल्लेख करिए छे, जेम के शराब तथा तंबाकूનું સેવન કરવું, એ પીવું, અને બીજી આદતોથી અમો અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને દૂર રહેવાનું અમે ફરમાવીએ છીએ. अभी एक छोटा पैराग्राफ है, बहुत बेहतरीन. मौला फरमाता है કે અમે ફરમાવીએ છીએ કે એ આદતો તંદુરસ્તી ઉપર નુકસાનકારક અસરો ઉપજાવે છે. અગર તમે શરાબ અને તંબાકુનું સેવન વધુ સમય સુધી ચાલુ રાખશો તો તમારા મગજને એવું ભયંકર નુકસાન પહોંચાડશો કે જેમ જેમ તમે મોટા થતા જશો ત્યારે તમારા કુટુંબ તથા તમારા બાળકોની સંભાળ રાખવા માટે તમે બિલકુલ વીક અને અશક્ત થઈ જશો. અમે માનીએ છીએ કે તમારા મગજને આ મુજબ અશક્ત કરવો એ એવા પ્રકારની બેવકૂફી અને મૂર્ખાઈ છે જેમ પોતાનો જમણો હાથ કાપી નાખો. આ બંને મૂર્ખાઈઓ એક સરખી જ છે. આજે અમે તમોને ફરમાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે શરાબનો નશો અને તમાકુના સેવનની બાબતો આવે તો તેનાથી દૂર રહો. એ કારણે નહીં કે ફક્ત કુરાનની અંદર નશારૂપ વસ્તુઓના સેવનની મના છે, પરંતુ આ આદતો તબીબી દ્રષ્ટિએ તંદુરસ્તીને નુકસાન કરતા છે અને તેના પરિણામો ભવિષ્યમાં એવા આવશે કે જે સંભાળી સુધારી ન શકાય. એક વખત અગર તમે તમારા મગજને નુકસાન પહોંચાડ્યું તો કોઈ પણ માનવ દવા દુનિયામાં એવી નથી કે જે તેને ક્યોર કરી શકે, સ્વસ્થ કરી શકે. એથી કરીને દુનિયાભરના અમે રૂહાની બચ્ચાઓને અમે ફરમાવીએ છીએ કે આ નુકસાનકારક આદતોથી તમે બને એટલા તમે दूर रहो. मेरे को ये जब क्वेश्चन उसने सुनाया ना उस कनाडा वाले भाई ने, वो कहता है मिशनरी साहब इतना मेरा दिल भर के आया, और जब मैं घर पे आया ना तो मेरी वाइफ बोलती क्या हुआ, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि दोस्त ये मैटर हुई, मौलाना हाज़िर इमाम ने मुझे कहा कि मैं तेरी मेहमानी कबूल करता हूँ. उसकी वाइफ भी बहुत रही, बोले मेरी वाइफ इतना उसको खुशी का, इतना उस शुक्राने की तस्वीर निकाली कि मौला तेरा लाख शुक्राना. ये चीज चाहता है मौला दीनदार, स्पेशली अपलिफ्टमेंट. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मैंने कहा ना हर वाइफ के अंदर देखो कोई भरोसा नहीं. काची माटीना घाट करूला फुकता न वागे रणक्यो,
جب تک ہاتھ میں سمے ہے، ٹائم ہے، اپنی لائف کو سدھارو، تھوڑا مذہب کی طرف خیال رکھو، تھوڑا بندگی کی طرف خیال رکھو. تو مولانا حاضر امام ہم جملہ جماعت کو خوشی سلامت اور آباد کرے گا. یا مولا حقیقت کی سمجھ دینا، یا مولا تیرے طرف کی محبت دینا، یا مولا نافرمانی کے کام سے بچانا، یا مولا ظاہر باطنی گناہوں کو معاف کرنا، یا مولا صبح شام جماعت کھانے آنے کی اعلیٰ شکتی ہمت اور پریرنا دینا. یا خدا حاضر امام جس سے تو راضی ہوئے ایسے نیک کام ہمارے سے تو ہمیشہ کرانا. یا مولا جلد ظاہر سنسا ساتھ تیرے ظاہری اور بندگی میں باطنی نصیب کرنا.